Hi kids, welcome to another chapter, chapter number 2 of grade 8, that is linear equations in one variable. So here we begin with the introduction and we'll first talk about what we already know, that is what is equation. So equation is something which has the expression on the left side and the right side, and in between there exists a sign of equality, right? So we see we have equation here, we have left side with the expression, right side also we have a expression. Yes, see, this is 2x minus 4 equals 10, or we can see 3x plus 4y equals 10. So here you could see we have only one variable, but here you could see two variables. Now talking about what is a linear equation. A linear equation is an equation where power or degree is 1. That means you have a variable but the power of the variable is only 1. And when you say you are going to solve a linear equation in one variable, that means you may come across the equation with two variables, you will convert them into an equation of one variable, and then you will solve such equations to get the values of the variables. Let's take the example. Here you have to verify that x equals 5 is the solution of the linear equation. So when you solve this equation, 3x minus 5 equals 10, in place of x we are going to put the value 5. So 3 times 5 minus 5, it turns into 15 minus 5 and we get 10 as the answer, which is equal to the right hand side. So we say the left and right side of the equation are equal and x equals 5 is the solution of the given equation. Moving further, we'll learn the steps to solve the linear equation. So first step that we'll take is we can add the same number on both sides, the left and the right side of the equation. Then you can also subtract the same number on both sides of the equation. Further, you can multiply both sides of the equation by same non-zero number, and you can also divide both sides of the equation by सेम नॉन ज़ीरो नंबर, राइट. तो हम क्या करेंगे, हमें कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी है, उसको सॉल्व करने के लिए हम अपने वेरिएबल को आइसोलेट कर देंगे, और आइसोलेट करने के लिए हम धीरे धीरे उसके साथ जो भी नंबर्स हैं, अगर वो प्लस साइन का नंबर है उसको दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन शिफ्ट करना है. दैट मीन्स इक्वेशन के दोनों साइड में -5 कर देंगे. ओके, सिमिलरली इफ़ यू हैव 5 multiply x, you are going to divide both sides by 5. Okay, and this could be easily done by transposing any term of the equation to another side which changes the sign of that particular value. So let's try doing the example here. We learn about solving the equation having variable terms on one side and numbers on the another side. So this is first type of pattern you could see. So we have x upon 3 plus x upon 4 minus x upon 6 equals 5. What will you do? You will first see the LCM of the denominators. So we have 3, 4, 6 as the denominators. हम सबसे पहले इसका LCM निकालेंगे जो 12 आएगा. अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया. 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये 4x बना. ऐसे ही 4 से 12 को डिवाइड किया तो 3 मिला, और 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो वो 3x बन गया. और उसके बाद हमने 6 से 12 को डिवाइड किया तो 2 मिला, और 2 मल्टीप्लाई x बन गया -2x, राइट. अब हम 4 + 3 करेंगे तो ये बनेगा 7x - 2x, इट टर्न्स टू 5x अपॉन 12 एज इट इज़ आ जाएगा. और अब हम इसकी वैल्यू को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि सिर्फ x लेफ्ट साइड में रह जाएगा. सो व्हाट विल यू डू, यहाँ पर ये 5/12 जो है इसका रेसिप्रोकल दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट मीन्स इधर भी आपने 12/5 से मल्टीप्लाई किया, और राइट साइड में जो 5 है उसको भी आपने 12/5 से मल्टीप्लाई किया, और इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया ये 5 और ये 5 कैंसिल हुआ, राइट. ऐसे ही ये 12 और 12 भी कैंसिल हो गया.
और राइट साइड में ये 5 और 5 कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, x on the left side and 12 on the right side. This becomes your answer, right? So now let's check whether your answer is correct or not. And for that आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 12 रखकर इस पूरे को सॉल्व करेंगे। तो 12/3 यहाँ आया, प्लस 12/4 माइनस 12/6, तो ये बना 4, ये बना 3, ये बना 2, and we get 7 minus 2 which is equal to 5, right? और आपकी right side of the equation में already 5 दिया हुआ था। So what do you conclude? We conclude the left side and the right side of the equations are equal, and this is your right answer, right? So let's move further and we learn solving the equation by method of transposition. तो ट्रांसपोजिशन हम कैसे करेंगे, हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इक्वेशन में वेरिएबल टर्म्स कौन से हैं और न्यूमरल्स कौन से हैं, राइट? एंड देन वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द लेफ्ट हैंड साइड and the right hand side of the equation, understood? And then we'll transpose the variables to left side of the equation and numerals will be transposes to right side of the equation, understood? और फिर क्या करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड को हमने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद हमें अगर रिक्वायरमेंट है हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड को by the coefficient of the variable which is on the left side of the equation. Suppose left side में आपके पास 3x बचा है, right? तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन की दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड करेंगे so that you are only left with x on the left side and that becomes your answer. Got it? Now every time you have to remember that the variable terms are always transposed to the left side and numerals को हम normally right side of the equation में transpose करते हैं। And don't forget to change the signs. Signs को कैसे change करते हैं, जो positive value है वो transpose होकर negative बन जाएगी और negative value positive बन जाएगी। ऐसे ही multiply का sign divide में change हो जाएगा और divide का sign multiply में change हो जाएगा। Got it? Let's move ahead and we'll learn solving some questions. तो हमें एक equation दी है x/3 plus 14/15 equals 1. What will you do? सबसे पहले हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर्स का LCM लिया। अब आप बताएंगे 3 और 15 का क्या LCM होता है? Yes, it is 15. तो 15 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 5 times is 15, इस 5 के साथ x को मल्टीप्लाई किया, we get 5x एंड ऐसे ही 15 से 15 को डिवाइड किया तो 1 आया एंड 1 14 times is 14, so we get 3x plus 14 upon 15 equals 1. अब आपने इस 15 को रिमूव करना है सबसे पहले, उसके लिए दोनों साइड इक्वेशन में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ 15 डिवाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है तो हमने दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई किया और ये कैंसिल हो गया। अब आप बताएंगे लेफ्ट साइड में क्या बचा, वी आर लेफ्ट विथ 5x plus 14 और राइट साइड में हमारे पास 15 है। अब टर्न आती है इस 14 को रिमूव करने की, सो वी आर गोइंग टू मूव 14 ऑन द राइट साइड। उसके लिए इक्वेशन की दोनों साइड में हम 14 सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड वी आर लेफ्ट विद 5x equals 1, राइट? अब ये 5x जो है यहाँ 5 हटाना है हमने, इस 5 को रिमूव करने के लिए दोनों साइड हम 5 से डिवाइड करेंगे एंड वी गेट x equals 1/5 as the solution, right? And we can even check this solution by the method of cross checking. Okay, now here we come to next question. This is example 4. Solve 6y minus 3 upon 3y plus 2 equals 3. So here what do? We are first going to multiply both sides of the equation by the denominator, that is 3y plus 2. अब हमने दोनों साइड को जब 3y plus 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3y plus 2 और ये 3y plus 2 कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट साइड में हमें बचा सिर्फ 6y minus 3
एंड राइट साइड में हमारे पास आ गया 3 टाइम्स 3y प्लस 2, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो एक बार 3 को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? व्हाट डू यू गेट? वी गेट 9y एंड प्लस 3 टाइम्स 2 इज 6। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है? हमने जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको लेफ्ट साइड में रखना है और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको राइट साइड में ले आएंगे। सो वी शिफ्ट दिस माइनस 9y, यहाँ पॉजिटिव 9y है, इधर शिफ्ट होकर इसके साइन चेंज हो जाएंगे और ये बनेगा 6y माइनस 9y, और ये जो -3 है जब ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा इट बिकम 6 प्लस 3 दैट्स 9, राइट? तो यहाँ मिला हमें 6 माइनस 9 दैट इज -3 इक्वल्स 9, एंड यहाँ से y की क्या वैल्यू मिलती है? वी गेट y इक्वल्स 9 अपॉन -3। यहाँ दोनों साइड में से हमने -3 से डिवाइड किया, ये -3 कैंसिल हो गया और 9 डिवाइड बाय -3 becomes -3. So we say this y equals -3 is the solution of this given equation, right? Let's move ahead. We'll take one more example. This is solve 3x minus 5 whole square plus 3x plus 5 whole square equals 18x plus 10, and in another bracket we have x minus 2 plus 44. और जब आप x की वैल्यू निकालेंगे उसके बाद आपने उसको वेरीफाई भी करना है, यू हैव टू चेक द सॉल्यूशन। सो फर्स्ट थिंग वी रिकॉल द फॉर्मूला कि अगर a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, इसको सिंप्लीफाई करके हमें मिलता है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो व्हाट विल यू डू? यहाँ आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन में हमने a के प्लेस पे 3x रखना है और b के प्लेस पे 5 रखना है। सो इट विल बिकम 2 टाइम्स 3x होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर, और राइट साइड ऑफ द इक्वेशन में आपने सब कुछ एज इट इज़ लिखा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3x होल स्क्वायर क्या होता है? इट इज़ 9x स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर होता है 25। सो वी राइट 2 टाइम्स ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन जिसे हमने सॉल्व किया। 18x को x से मल्टीप्लाई किया, ये बना 18x स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम 18x को -2 से मल्टीप्लाई करके हमें मिला -36x। अब इस 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10x बन जाएगा, एंड 10 टाइम्स -2 इज़ -20, और ये प्लस 44 एज इट इज़ रखेंगे। अब राइट साइड को और सिंप्लीफाई करेंगे, ये 18x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हमने सॉल्व किया, -36 प्लस 10 गिव्स यू -26x, एंड -20 प्लस 44 बन गया +24, राइट? एंड जब हमने लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला 18x स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके +50। अब दोनों साइड x स्क्वायर की टर्म सेम आ रही है, राइट? हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, या हम बोल सकते हैं हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया। सो यू आर लेफ्ट विथ 50 इक्वल्स -26x प्लस 24। नाउ व्हाट विल यू डू? इस -26x को लेफ्ट साइड ले जाएंगे और इस 50 को राइट साइड ले आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 26x इक्वल्स -26, एंड आपने इक्वेशन की दोनों साइड 26 से डिवाइड किया, सो इट टर्न्स टू x इक्वल्स -1। अब आपने क्या करना है, ये x की जो वैल्यू आई है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एंड यू आर गोइंग टू पुट द सॉल्यूशन फर्स्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, देन ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, और दोनों केसेस में सेम आंसर मिला है, राइट? So we say LHS equals RHS, and this -1 is the solution of the equation which is given to you, right? So very interesting, but आपको ये ध्यान रखना है कि आपने स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट लेनी है। Coming to next example, यहाँ आपने जब सॉल्व करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 के साथ 6x - 2 मल्टीप्लाई करेंगे, और -3 के साथ -7x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? इसको हमने सॉल्व किया। 6 4 टाइम इज 24x, एंड देन 4 टाइम्स 2 इज -8, 3 टाइम्स 7 इज 21, दोनों माइनस हैं, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये बनेगा 21x,
और -3 और +3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा. ओके, नाउ यू आर टेकिंग दिस 21x ऑन वन साइड एंड दिस -8 कम्स ऑन अनदर साइड. तो यहाँ बन जाएगा 24x minus 21x and -9 plus 8. So we get 3x equals -1 and the value of x is equal to -1/3. This is your answer. Understood? Let's move further. We will take another example and then you have to again verify your answer over here. So what will you do first? सबसे पहले हमने ये देखा कि जो डिनोमिनेटर्स हैं दैट इज़ y+2 और 5, इन डिनोमिनेटर से इक्वेशन की दोनों साइड्स आपने मल्टीप्लाई की. सो दिस y+2 एंड y+2 गेट्स कैंसल्ड, दिस 5 एंड 5 ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड. तो यहाँ आपको मिला 5 टाइम्स 2y+1 और राइट साइड में 4 टाइम्स y+2. राइट, सो दिस इज नाउ ओपनिंग द ब्रैकेट, बायनोमियल को एक मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 के साथ पहले 2y मल्टीप्लाई किया, फिर 5 के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया एंड राइट साइड में भी ऐसे ही 4y + 8. राइट, एंड देन यू सिंप्लीफाइड. इस 4y को लेफ्ट साइड ले गए, -4y बना. इस 5 को राइट साइड लेकर आए, ये -5 बन गया. सो 10 - 4 इज 6y और इधर जब 5 आया तो 8 - 5 becomes 3. सो यू गेट 6y = 3. y की क्या वैल्यू हो गई? 3/6. राइट, एंड वी गेट y = 1/2. इजंट इट? अब y की वैल्यू मिली हमें 1/2. इस 1/2 को हमने इक्वेशन के लेफ्ट साइड में भी पुट करना है और इसको चेक करना है क्या ये इक्वल टू 4/5 आ रहा है या नहीं. This is what we have done here. And what do you get? Yes, it's same as your right hand side of the equation, which is 4/5. So we say our solution 1/2 is absolutely correct. Got it? Let's move ahead and now it's your time to do the exercise. यहाँ आपका first question क्या है? Solve the following equations and check your answer. आप equation को solve करेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर को, उस x की वैल्यू को लेफ्ट साइड में भी पुट करना है, राइट साइड में भी पुट करना है और चेक करना है इज इट इक्वल. और अगर इक्वल है तो आपका आंसर करेक्ट है, बट अगर इक्वल नहीं है तो आप क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू चेक आवर क्वेश्चन बैक अगेन. गॉट इट? देन वी आर गोइंग टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस बाय आवर ओन. एंड नाउ वी टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस to practical problems. So practical problems are our day-to-day problems and we use linear equation as a wonderful tool to solve our day-to-day problems. Okay, so there are certain steps to be followed. अब क्या steps follow करने हैं वो बताती हूँ. Step number 1, read and reread your word problem till you understand what is given, what do you want to calculate, right? And then जो unknown चीज़ें होती हैं उनको assign करते हैं कोई variables. कोई भी variable हो सकता है, a, b, x, y and any variable. And then आपकी जो question की language है, जो word problem की language है, उसको हम mathematical equation, mathematical statement में convert कर देंगे. अब equation बन गई, हमें equation solve करनी आती है. From this equation, using the conditions given in the problem, you are going to solve the equation to find the value of the unknown measures. Got it? This is how we get the solution. अब question देखते हैं. Let's come to this example. The sum of two numbers is given as 184. If the numbers are in the ratio 3:5, you have to find the numbers. अब numbers नहीं मालूम लेकिन numbers का हमें ratio मालूम है, तो हम assume करते हैं कि numbers 3x और 5x है. अब इन दोनों का sum हमें दिया हुआ है, that is 184. We'll write 3x plus 5x equals 184 और 3x plus 5x क्या होता है? That's 8x. तो इक्वेशन बनी आपकी 8x equals 184. x की वैल्यू क्या हो गई?
It is 184 divided by 8, that's equal to 23. But wait, this is not the answer, because आपको numbers निकालने हैं, और numbers क्या थे? Numbers were 3x and 5x. तो एक बार 23 के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ, आपको फर्स्ट नंबर मिला, दैट इज 69. सेकेंड टाइम आपने इस x को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपको नंबर मिला 115. When you add them, you will get the sum as 184. तो आपके required numbers क्या हो गए? This is 69 and 115. Let's come to example number 2. Read the question. Mr. S.K. Handa left 1/3 of his property for his sons, 1/4 for his daughter, and the remaining for his wife. If the wife's share was worth rupees 40,000, how much money did Mr. S.K. Dhaka have? तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया कि कितनी मनी मिस्टर ढाका के पास थी, हमें नहीं मालूम. हमने बोला लेट एक्स मनी वॉज देयर विद मिस्टर ढाका एंड सन का शेयर हो गया 1/3 of the total money, that is x upon 3 rupees. Now we talk about daughter's share, which is rupees x upon 4, and after this हम remaining property की बात करते हैं. तो टोटल प्रॉपर्टी जो x रुपीज़ थी उसमें से सन का और डॉटर का शेयर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो आ गया वाइफ का शेयर, और वाइफ का शेयर हमें ऑलरेडी मालूम है, इट वॉज 40,000 रुपीज़. सो वी से दैट x माइनस द शेयर ऑफ सन एंड डॉटर इज इक्वल टू 40,000. अब क्या करना है? x को निकालना है. हमें इक्वेशन मिल गई है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल गया 96,000. सो this was the total money which Mr. Dhaka left, and that's the answer of the question. Very interesting. So this is how you apply linear equations in your day-to-day life. Here we move with example 3. 5 years ago, ago मैंने पहले, Shikha was thrice old as Zenat, and 10 years later Shikha will be twice as old as Zenat. So now you want to know their ages. So let's say कि जीनत की एज 5 years पहले x years थी, और उसके अकॉर्डिंग शिखा की एज 5 years पहले 3 times थी, तो वो 3x years हो गई, राइट. एंड जीनत की प्रेजेंट एज क्या हो गई? 5 years पहले वाली एज जो x थी उसमें हमने +5 किया, वी गेट x + 5. इसी तरह शिखा की प्रेजेंट एज हो गई 3x + 5, right. Now we say that Zenat's age 10 years later. तो हमने पहले निकाली प्रेजेंट एज, कहाँ से? पास्ट वाली एज से प्रेजेंट एज निकाली. अब प्रेजेंट एज से 10 year later वाली एज निकालेंगे. सो इसमें भी हमने 10 ऐड किया और इसमें भी हमने 10 ऐड किया. सो वी गॉट द एजेस एज x + 15 and 3x + 15 years. Now what is the question saying? According to the question, 3x + 15 is equal to twice of age of Zenat, right? That means twice of x + 15. Now we are going to solve it, and on solving we get the value of x, which is 15. अब x की वैल्यू मिली है 15, उससे हम प्रेजेंट एज जीनत की निकालेंगे, that is x + 5, which is 20 years. And Shikha's present age is 3x + 5, and which comes out as 50 years. So these are the ages of Zenat and Shikha. Now we come to the exercise, and here we have so many questions based on what we have already done. So let's come at the first question. The question says the difference of the two numbers is 8 and they are in the ratio 9:13. तो हमने assume किया फर्स्ट नंबर 9x है, सेकेंड नंबर जो बड़े वाला नंबर है वो 13x है. अब क्वेश्चन बोलता है दोनों नंबर्स का डिफरेंस 8 है, दैट मीन्स 13x - 9x इज इक्वल टू 8, राइट. अब हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, क्या मिला? 4x. वी राइट 4x = 8, तो x की वैल्यू यहाँ से मिल गई 8/4, दैट इज इक्वल टू 2.
नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये नंबर नहीं है, नंबर क्या होगा 2 multiply by 9, so we write 2 multiply 9 that is 18 and then 2 multiply 13 which comes out as 26. Got it? So these are the two required numbers. इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको टू नंबर्स का सम दिया है 180 एंड उनका रेशो दिया हुआ है 5:11. So this time you'll write 5x plus 11x equals 160, right? एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, when 1 is subtracted from 5 times a number, तो अगर आपका नंबर x है तो 5 times a number 5x हो गया and subtracted 1, so we write it like this and this result is divided by 3 more का मतलब plus 3, then twice the number मतलब 2x plus 3 we get 4/5. बन गई इक्वेशन. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू निकलकर आपको रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स. जब भी आप ऑड नंबर्स की बात करते हैं तो ऑड नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो टू डिजिट्स का होता है, लाइक 1, 3, 5, 7. तो हम जब ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स एज्यूम करते हैं तो इस तरह से करते हैं, फर्स्ट नंबर फिर नेक्स्ट नंबर +2 फिर नेक्स्ट नंबर अगेन +2, वो x+4 हो जाता है. अब इन तीनों का सम हमें 51 दिया हुआ है, राइट? सो विल ऐड देम एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x, और ये जो x की वैल्यू मिलेगी ये आपका फर्स्ट नंबर होगा. फिर +2 करेंगे सेकेंड नंबर मिल जाएगा, फिर +2 करेंगे फिर आपको थर्ड नंबर मिल जाएगा. अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. So this way, now I want you to try all these questions by your own and we come to the summary of the chapter, right? First thing you have to remember is that an equation consisting of only linear polynomials is called linear equation, and the solution of linear equation is the value of the variable which satisfies the equation. Now we'll learn the rules of solving the linear equation. So first rule is कि आप सेम नंबर इक्वेशन के दोनों साइड ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. हम इक्वेशन की दोनों साइड सेम नंबर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सेम नंबर से दोनों साइड को डिवाइड भी कर सकते हैं. और ध्यान रखेंगे कि वो जो नंबर होगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, राइट? And then any term of the equation can be transposed to another side, लेकिन रूल है कि उसके साइन चेंज हो जाएंगे. तो पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, एंड मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होगा और डिविजन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, राइट? देन यू हैव इक्वेशन ऑफ दिस टाइप. इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए we have a thumb rule of cross multiplication, और जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको आपका x मिसिंग मिल जाएगा. Let's move ahead. We have multiple choice questions, so please try doing these questions by your own and stay tuned for your next video. See you soon.